بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ صدر کے حامی عراقی پارلیمنٹ میں گھس پڑے، ایران کے خلاف نعرے، وزارت عظمی امیدوار کے خلاف احتجاج۔ کردستان حملے پر ترکی اور عراق میں تکرار، بغداد میں سفیر کو بلا کر احتجاج کیا گیا۔ لبنان میں ضروری چیزوں کا بحران اور سنگین ہو گیا، احتجاجی بیکریز میں گھس پڑے۔ ایران میں ایک اور جاسوسی نیٹ ورک بے نقاب، موساد کے کئی ایجنٹس گرفتار۔ امریکہ اسرائیل کو دی گئی کھلی چھوٹ برخاست کرے، شیرین ابو عاقلہ کے خاندان نے کیا بائیڈن سے مطالبہ۔ جارح طاقتوں کے خلاف نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں گے، نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے دی دھمکی۔ دروپدی مرمو کو راشٹرپتی کہنے پر ہنگامہ، ادھیر رنجن چودھری نے کہا زبان کی غلطی ہے، بی جے پی نے سونیا گاندھی سے کیا معافی کا مطالبہ۔ کرناٹک میں بی جے پی کارکن کے قتل کے لیے 2 گرفتار، چیف منسٹر بومئی نے کہا ضرورت پڑنے پر یوگی ماڈل اپنائیں گے۔ بیکویل کیک ہاؤس، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ سارے شہر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ مڈل ایسٹ سے شروعات کرتے ہیں۔ سینکڑوں عراقی احتجاجی بغداد میں پارلیمنٹ کے اندر گھس پڑے اور ایران کے خلاف نعرے لگائے۔ یہ لوگ ایران کی تائید رکھنے والی جماعتوں کے وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق بااثر شیعہ عالم مقتدی الصدر کی پارٹی سے تھا۔ یہ لوگ عراقی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ عراق میں الیکشنز کے 10 مہینے بعد بھی کوئی حکومت نہیں بن پائی ہے۔ جس وقت پارلیمنٹ کی عمارت پر ہلہ بولا گیا، اندر کوئی رکن پارلیمنٹ نہیں تھا، صرف سیکیورٹی عملہ موجود تھا جس نے احتجاجیوں کو جانے دیا۔ یہ لوگ محمد السودانی کو وزیر اعظم کے عہدے کا امیدوار بنانے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ایران کی تائید رکھنے والی شیعہ پارٹیوں اور ان کے اتحادیوں نے سودانی کو امیدوار بنایا ہے۔ حالیہ عرصے میں یہ دوسرا موقع ہے جب صدر نے اپنے حامیوں کا اس طرح استعمال کیا ہے۔ جولائی کے شروع میں ہی ہزاروں لوگوں نے ایک اجتماع میں حصہ لیا تھا۔ اکتوبر 2021 میں پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے حکومت بنانے کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ ان الیکشنز میں مقتدی الصدر کے گروپ نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی تھیں، لیکن حکومت بنانے میں ناکامی کے بعد وہ سیاسی عمل سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور اپنے بلاک کے ارکان کو استعفیٰ دینے کی ہدایت دی تھی۔ ایران کی تائید رکھنے والی پارٹیوں کے امیدوار محمد شیعہ السودانی ایک سابق وزیر اور سابق صوبائی گورنر ہیں۔ الصدر نے ان کی امیدواری کو رد کر دیا ہے۔ الصدر بلاک نے پارلیمنٹ الیکشنز میں 329 رکنی پارلیمنٹ میں 74 سیٹیں جیتی تھیں۔ ایران کی تائید رکھنے والی پارٹیوں کے اتحاد فتح الائنس کو ان الیکشنز میں دھکا لگا تھا۔ الصدر ایران اور امریکہ دونوں کے عراق میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف ہیں۔ ان کی مہدی آرمی نے 2003 میں عراق پر امریکہ کے حملے اور قبضے کے بعد مزاحمت کی تھی۔
तुर्की और इराक के दरमियान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लफ्जी तकरार हुई। हाल ही में इराक के कुर्दिस्तान इलाके के दोहोक में एक हमला हुआ था जिसमें 9 टूरिस्ट मारे गए थे। इराक ने इसके लिए तुर्की को जिम्मेदार ठहराया जबकि तुर्की ने यह इल्ज़ाम रद्द कर दिया है। सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने 20 जुलाई के इस हमले की तहकीकात के लिए इराक के मुतालबे की तायद की। सिक्योरिटी काउंसिल ने एक ज़बान में इस हमले की मजम्मत की है, लेकिन काउंसिल के अरकान ने मंगल को होने वाली मीटिंग में तुर्की का नाम नहीं लिया। बगदाद में तुर्की के सफ़ीर को बुलाते हुए इस वाक़े पर एहतजाज किया गया और इसे काबिल नफ़रत जुर्म करार दिया गया। इराक के अरकान पार्लियामेंट ने इस हमले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया है। तुर्की ने इस हमले के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी KPP को जिम्मेदार ठहराया है, जिसे वो दहशतगर्द तंजीम करार देता है। ये तंजीम PKK लंबे अरसे से कुर्दों के लिए तुर्की में एक अलग होमलैंड के लिए जद्दोजहद कर रही है। तुर्की का कहना है कि इराक और सीरिया में सरगर्म कुर्द ग्रुप्स का ताल्लुक PKK से है। तुर्की नॉर्थ सीरिया में कुर्दों की फौज YPG के खिलाफ एक ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहा है, जिससे सीरिया की हुकूमत और ईरान खुश नहीं है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत में आपसी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर ख़यालात का तबादला किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी ने ये बात बताई। बात यूक्रेन की। रशिया ने कीव इलाके में ताज़ा हमले किए हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। बरतानिया की वजारत दिफा ने बताया कि खैरसोन में यूक्रेनी फ़ौज की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। यूक्रेन की फ़ौज ने लंबी दूरी तक निशाना बनाने वाले तोपखाने की मदद से 3 पुलों को नुकसान पहुंचाया है, जिसका इस्तेमाल रशियन फ़ौज अपनी सप्लाई के लिए कर रही थी। इस दौरान खैरसोन में यूक्रेन जवाबी हमले कर रहा है। खैरसोन बाकी इलाकों से कटा हुआ है। खैरसोन पहला शहर था जहां पर रशियन फ़ौज ने कब्जा किया था। इस दौरान रशियन फौज साउथ यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। ईस्ट यूक्रेन के डोनेस्क में रशिया ने दूसरे बड़े पावर स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। सीरिया की स्वेदा में झड़पें हुई हैं जिनमें कम से कम 16 लोग हलाक हुए हैं। ये झड़पें हुकूमत के वफादारों और मकामी बागी फाइटर्स के दरमियान हुई हैं। बताया गया कि हुकूमत के 10 हामी और 7 मकामी फाइटर्स मंगल और चारशंबे को होने वाली इन झड़पों में हलाक हुए हैं। जिस इलाके में ये झड़पें हुई हैं वहाँ द्रूस तबके की आबादी ज़्यादा है। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में 6 फ़लस्तीनी घरों को एक ताज़ा कार्रवाई में गिरा दिया है। मकामी मीडिया में ये बात कही गई। जिन लोगों के घर गिराए गए उन पर मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों को हलाक करने का इल्ज़ाम है। इसराइल ने हमास के एक सीनियर लीडर शेख अली अब्दुल रब की नज़रबंदी की मुद्दत बढ़ा दी है। इसराइल की एक फ़ौजी अदालत ने यह फैसला सुनाया। अब उन्हें कम से कम और 3 महीने जेल में रहना पड़ेगा। उन्हें अप्रैल के महीने में जेनिन शहर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। 1992 में उन्हें हमास के साथ ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 19 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी। मगरबी किनारे में अलग अलग मकामात पर धावे करते हुए इसराइली फ़ौज ने कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इनमें कई बच्चे भी हैं। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इसराइली फ़ौज के हाथों जाँ बहक शीरीन अबू आक़ला की भतीजी ने कहा है कि अमरीका को चाहिए कि वो इसराइल को दी गई खुली छूट ख़त्म करे। शीरीन अबू आक़ला फ़लस्तीनी अमेरिकन शहरी थीं जिन्हें 11 मई को मगरबी किनारे के जेनिन शहर में रिपोर्टिंग के दौरान हलाक किया गया था। अबू आक़ला के भाई टोनी और भतीजी लीना इस सिलसिले में एक मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि अमरीका इसराइल को जवाबदेह बनाने के लिए सख्त कदम उठाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हाल ही में इसराइल दौरे के दौरान अबू आक़ला के ख़ानदान से मुलाकात से इनकार कर दिया था। अब अबू आक़ला के अरकान ख़ानदान वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस के अरकान, ओहदेदारों और मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहे हैं। लीना ने कहा कि अबू आक़ला एक अमेरिकन शहरी थी जिन्हें अपने मुल्क पर फ़ख्र था। बदकिस्मती से अमरीकी शहरी होने के बावजूद उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। सऊदी अरब और ग्रीस ने एनर्जी, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के शोबों में $3.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फोरम बनाया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के बाद ये ऐलान किया गया। दोनों मुल्कों के ओहदेदारों ने कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में ताउन के बारे में भी बातचीत की। ये जमाल खशोगी कत्ल के बाद मोहम्मद बिन सलमान का किसी यूरोपीय मुल्क में पहला दौरा था। उन्होंने ग्रीस के वज़ीर आज़म के साथ कई तिजारती मनसूबों के बारे में बातचीत की।
नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि उनका मुल्क जारी ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का पाबंद है। उन्होंने कोरिया जंग की 69वीं सालगिरह के मौके पर खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारी फौजें किसी भी बहरान से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे मुल्क के न्यूक्लियर हथियार हमारी हिफाजत के लिए हैं। किम ने इल्ज़ाम लगाया कि वाशिंगटन साउथ कोरिया के साथ मिलकर एक खतरनाक खेल खेल रहा है और वो नॉर्थ कोरिया को विलन बनाकर पेश करते हुए अपना रवैया दुरुस्त ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका पर दोगलेपन का इल्जाम लगाया। लेबनान में एहतजाजियों ने कई बेकरीज और पेस्ट्री शॉप्स पर हल्ला बोल दिया। मुल्क में खाने पीने की चीज़ों का बहरान और संगीन हो गया है। स्टोर्स पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। लोगों को सब्सिडी पर रोटी हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया कि माफिया तंजीमें सब्सिडी वाला आटा ब्लैक मार्केट में बेच रही हैं और सीरिया स्मगल कर रही हैं। लेबनान लंबे अरसे से मौशी बहरान से दो चार है। वज़ीर मौशियात अमीन सलाम ने कहा कि इस हफ्ते के ख़त्म तक तकरीबन 49,000 टन गेहूं लेबनान पहुंचने की उम्मीद है। लेबनान में दवाओं, गेहूं और फ्यूल की किल्लत पैदा हो गई है। पेट्रोल की कीमतों में 14,000 पाउंड का इजाफा हुआ और अब पेट्रोल की कीमत 6,17,000 पाउंड फी 20 लीटर है। कारगुजार वज़ीर फाइनेंस यूसुफ खलील ने कहा कि हुकूमत बहरान पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान अमरीकी सफ़ीर डोरती शिया ने लेबनान के लीडर से कहा कि वो वक्त पर सदारती इलेक्शंस कराएं और मौशी सुधार लाएं ताकि वर्ल्ड बैंक और IMF की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और उन्हें मुतमईन किया जा सके। उन्होंने सस्ती और साफ़ सुथरी तवानाई, बिजली, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और फैक्ट्रीज़ को देने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान में इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले एक जासूसी नेटवर्क को बेनकाब किया गया है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरानी पुलिस ने हालिया अरसे में कई बार इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं। इनका ताल्लुक़ इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से था। वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने बताया कि हालिया महीनों में ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ कई कामयाब ऑपरेशंस किए हैं और इसराइल की साजिशों को नाकाम बनाया है। जून के महीने में ईरान के न्यूक्लियर साइंसदानों को हलाक करने की एक साजिश को बेनकाब करते हुए 3 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल में इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने कहा था कि सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में मोसाद के साथ मिलकर काम करने वाले बाज़ एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। ईरान के एक ओहदेदार ने कहा है कि मुल्क ने JCPOA बातचीत में कोई नई शर्तें नहीं रखी हैं जैसा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। न्यूक्लियर बातचीत में हिस्सा लेने वाली ईरानी टीम के एडवाइज़र मोहम्मद मरांदी ने एक इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने कहा कि झूठे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान अमेरिका से हद से ज़्यादा मुतालबात कर रहा है। न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत फ़िलहाल रुकी हुई है। लौटते हैं इंडिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी के लफ्ज़ के इस्तेमाल पर बीजेपी ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद की है और सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया था। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से माफ़ी का मुतालबा किया और कहा कि उन्होंने मुल्क के आला तरीन ओहदे पर फायज खातून की बेइज्जती की इजाज़त दी है। उन्होंने सोनिया गांधी को आदिवासी दुश्मन, दलित दुश्मन और औरत दुश्मन करार दिया। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने भी एहतजाज किया जो हाल ही में कोविड से सेहतयाब हुई हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के दूसरे अरकान के साथ पार्लियामेंट में प्ले कार्ड्स उठाए और राष्ट्रपति रिमार्क के खिलाफ एहतजाज किया। लोकसभा में सीतारमण ने इसे जिनसी इम्तियाज पर मबनी रिमार्क करार दिया। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और
अधीर रंजन चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि यह उनकी जबान की गलती है और बीजेपी राय का पहाड़ बना रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी कीमतों में इजाफे, जीएसटी, अग्निपथ स्कीम, बेरोजगारी और दूसरे ज़रूरी मसाइल पर से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो शख्सी तौर पर मुर्मू से मुलाकात करेंगे और अगर उन्हें तकलीफ हुई है तो वो माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि वो बंगाली हैं और उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। चौधरी ने एक वीडियो में कहा कि हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया कोई भी हों, चाहे वो ब्राह्मण हो या आदिवासी हों, सदर होते हैं और हम इस ओहदे की इज्जत करते हैं। कल हम विजय चौक पर एहतजाज कर रहे थे। रिपोर्टर्स ने हमसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने बताया कि हम राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। बाद में मैंने सफाई दी कि गलती से मैंने ऐसा कहा। मैं तो कुछ किया नहीं है, गलती एक एरर हुआ है, चूक हुआ है, ये जानबूझ के नहीं। मैं बार बार सुबह से कह रहे हैं। आज देखा सत्तापक्ष खुद सदन को भंग कर रहे हैं। मैं स्पीकर साहब से निवेदन करके, दरखास्त करके मेरी बात रखने के लिए समय मांगा था। स्पीकर ने समय तय किया था 12 बजे, क्योंकि मेरे खिलाफ आरोप लगाएगा तो ये मेरे भी फर्ज बनते हैं, मेरी भी जिम्मेदारी बनते हैं कि इसके जवाब देना। तो इसके लिए मैं स्पीकर साहब से चिट्ठी लिख के समय मांगी। स्पीकर साहब ने समय देने में इजाजत दी, लेकिन बाद में स्पीकर साहब नहीं आई, दूसरे किसी चेयरमैन साहब को भेजा। तो मैं अपना बात रखने की खराबी हुई, लेकिन मुझे बात करने के नहीं देते। ये लोग खुद अकेले बोलेंगे, उल्टी तरफ हमारे खिलाफ अगर इल्जाम रहे, हमें तो बोलने का मौका देना चाहिए। आज देखा सत्तापक्ष खुद, सरकार खुद सदन को भंग कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई से उनको भागना है, अग्निपथ की चर्चा से उन्हें भागना है, ईडी सीबीआई की दुरुपयोग से उनको भागना है, बेरोजगारी के मुद्दे से उनको भागना है। इसलिए बड़े आसानी से वो तरीका सोच लिया कि ये राय को अभी पहाड़ बनाओ। क्यों अधीर चौधरी ने राष्ट्रपति का, मैंने सुबह से कहना है, चूक हुआ है, चूक हुआ है, चूक हुआ है। राष्ट्रपति की आर्टिकल 60 के तहत उस दिन जो समारोह में शपथ ग्रहण की थी, उस दिन हम सब मौजूद थे वहां। राष्ट्रपति जो भी हमारे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, सदन में राष्ट्रपति जी के बुलावे पर ही हम लोग आते हैं, ऐसा नहीं आते। तो जिनकी बुलावे पर आते हैं, मैं उनको कैसे सम्मान कर सकता? कैसे? वो हमारे सर्वोच्च पद में शामिल, पद में भी आसीन है। मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकते, लेकिन चूक हुआ तो क्या करे? अभी फांसी में लटका दो। बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि चौधरी ने माफी मांग ली है। लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद वो बीजेपी एमपी रमा देवी के पास गईं। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है, इसमें मेरा क्या कसूर है? चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के लीडर हैं। Ma'am, will you ask Adir Da to apologize? Ma'am, will you ask Adir Da to apologize? He has already apologized. He has already apologized. राज्यसभा से मजीद 3 अरकान को उनके रवैये की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। इसमें आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता और संदीप पाठक और आज़ाद रुकन अजीत कुमार भोयान शामिल है। इससे पहले राज्यसभा के 20 दूसरे एमपीज को भी पूरे हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया था। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में जुमेरात को भी खलल अंदाजी हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहने पर बीजेपी अरकान ने गड़बड़ की, जबकि अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने कीमतों में इजाफे और दूसरे मसाइल पर हंगामा किया। पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने के बाद से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बुरी तरह मुतासर हो रही है। औरतों के कौमी कमीशन ने अधीर रंजन चौधरी से राष्ट्रपति रिमार्क पर सफाई मांगी है। कमीशन ने इस सिलसिले में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को भी एक खत लिखा है। बंगाल के वजीर पार्थ चैटर्जी को आखिरकार बरतरफ कर दिया गया है। उन्हें 23 जुलाई को गैर महसूब कैश पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने गिरफ्तारी के 5 दिन बाद उन्हें कैबिनेट से बरतरफ किया। उन पर सरकारी स्कूलों में टीचर्स और दूसरे स्टाफ के तकर्रुर में धांधलियों का इल्ज़ाम है। इम्कान है कि उन्हें टीएमसी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से भी हटा दिया जाएगा।
कर्नाटक में बीजेपी कारकुन के कत्ल के लिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक मालूम नहीं हो सका कि इस कत्ल का क्या मकसद है, लेकिन पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए एक शख्स का ताल्लुक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से हो सकता है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 27 साल मोहम्मद शफी और 29 साल जाकिर की हैसियत से की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला सेक्रेटरी प्रवीण नेट्टार को 3 लोगों ने मंगल की रात तेजधारी हथियार से वार करते हुए हलाक कर दिया था जब वो अपनी चिकन शॉप बंद करके घर जा रहा था। इस पर बीजेपी यूथ विंग के कारकुनों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कहा कि बीजेपी कारकुन के कत्ल के पस मंजर में हम जरूरत पड़ने पर रियासत में योगी मॉडल अपनाएंगे। वो बीजेपी और संघ परिवार के हामियों के बाज़ मुतालबात का जवाब दे रहे थे। इन कारकुनों का इल्ज़ाम है कि रियासती हुकूमत योगी मॉडल इख्तियार करे क्योंकि हुकूमत उनकी हिफाजत में अब तक नाकाम हो रही है। कर्नाटक के कई मकामात पर बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। चीफ मिनिस्टर बोम्मई ने बेंगलुरु में प्रवीण नेट्टारू से यानी उसके खानदान से मुलाकात की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बेकवेल केक हाउस हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। सदर के हामी इराकी पार्लियामेंट में घुस पड़े, ईरान के खिलाफ नारे, वजारत उज़्मा उम्मीदवार के खिलाफ एहतजाज। कुर्दिस्तान हमले पर तुर्की और इराक में तकरार, बगदाद में सफीर को बुलाकर एहतजाज किया गया। लबनान में जरूरी चीजों का बहरान और संगीन हो गया, एहतजाजी बेकरीज में घुस पड़े। ईरान में एक और जासूसी नेटवर्क बेनकाब, मोसाद के कई एजेंट्स गिरफ्तार। अमरीका इसराइल को दी गई खुली छूट बर्खास्त करे, शीरीन अबू अक्ला के खानदान ने किया बाइडेन से मुतालबा। जारह ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने दी धमकी। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहने पर हंगामा, अधीर रंजन चौधरी ने कहा जबान की गलती है। बीजेपी ने सोनिया गांधी से किया माफी का मुतालबा। कर्नाटक में बीजेपी कारकुन के कत्ल के लिए 2 गिरफ्तार, चीफ मिनिस्टर बोम्मई ने कहा जरूरत पड़ने पर योगी मॉडल अपनाएंगे। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।